Hello dear students, as we were revising once again our poem literature and we have read our first poem, hope that you got well. Now we are going to repeat once again a second poem. An elementary school classroom in slum, written by Stephen Spender. As you all know that this is the story of a slum. The children belongs to slum area. Those live in very critical condition, poorly, and at all, even they are starved to die. And how he has described the condition of these children, how they looked, how they survived, and what their imaginations, and how they died. It has been described in that poem through a poet. Let's read very clearly what the description of their body, their looking, their appearance, and their lifestyles and their thoughts has been described. Okay, guys, throughout now. और जहां तक बात करें, यदि आप किसी स्लम एरिया में गए होंगे तो आप जानते होंगे कि गरीब बच्चों की हालत क्या होती है। वो बच्चे जो रैग पिकिंग करते हैं, पन्नी चुगते हैं, पॉलिथीन चुगते हैं, या फिर अपने बहुत ही कमजोर सस्ती बस्ती या गंदी बस्ती में रहते हैं, जहाँ झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिनके पास अच्छे से मकान भी नहीं होते, झोपड़ियाँ होती हैं, तंग गलियाँ होती हैं, और उन बच्चों के पास अच्छे कपड़े नहीं होते, भोजन नहीं होता, उनकी हालात माली होती है। यू कुड इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। Let's read how the poet has described the description of the children. Far, far from gusty waves the children faces. Far. It means the thing is that बहुत दूर ये बच्चे उन हवाओं से, उस दुनिया से, actually the life generally a human live in a happy mood, in a perfect way. They are at all far from that. वो उस जीवन से बहुत दूर हैं जो साधारण जीवन हम लोग जीते हैं। स्वस्थ जीवन, अच्छा जीवन। Like rootless weeds, their hair torn round their collar. बिल्कुल इस तरह है जैसे कोई बेजान पौधा हो जिसमें जड़ ही ना हो। At least very poor. Hair torn round their collar. और उनका जो चेहरा है, जो कमजोर चेहरा, पीला पड़ा हुआ चेहरा, there is anemia in that. उस पर बाल बिखरे हुए हैं। A tall girl with her weighed down head, और एक लंबी लड़की जो झुके हुए अपना सर नीचे झुकाए हुए बैठी हुई है क्लास में। पेपर स्विमिंग बॉय, कागज की तरह दुबले पतले बहुत lean and thin बच्चे, with red eyes, चूहे की तरह आंखें, उनकी आंखें अंदर धसी हुई हैं, छोटी हैं, जिनमें भूख नजर आती है। Stunned, unlucky hair of twisted bone, जो अपने उस कमजोर शरीर के उत्तराधिकारी हैं, मालिक हैं। Reciting the father's renal disease, रिपीट कर रहे हैं अपने पापा की, अपने बड़ों की, अपने पूर्वज की उस रीति रिवाज को, जिस तरह वो माली हालत में जी रहे हैं, बुरी स्थिति में है, उसी प्रकार उसी स्थिति को वो भी रिपीट कर रहे हैं। At all they are poor, they are living in the same places and they are starting to die also in that mood. His lessons from his desk, और इस प्रकार ये बच्चे एक प्राइमरी स्कूल है, स्लम बस्ती में है, और अपनी क्लास में लेसन ले रहे हैं। At the back of the dim class, और बड़ी क्लास है, पीछे क्लास में dim class means that there is not proper light too, वहां अच्छी रोशनी भी नहीं है। उस क्लास में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, sweet and young. His eye lives in dream, उसकी आंखों में सपने हैं of square games, trees, rooms, and other than this. Thing is that this is a class of slum area, of slum school, and in that class there is not well proper light, well equipment, and also teachers is not paying more attention to the students, because as it has been described that the children are sitting behind the class and they are thinking about the games, they are thinking, and their attention is not in class. Even the girl also sitting with a way down head, which is suffering from
their ancestors thinks just like, well, she is suffering from malnutrition, and children look like that paper ceiling, so lean and thin, very poor, and also their hair not combed well. At least the things have been described here, they are completely out of the simple and general life, wealthy life. They are really poor. Well, in the second paragraph, Burke had tried to describe the classroom on sour cream wall as it looks that it's a long time it was painted. Now the paint was peeling off the walls. Donations, Shakespeare hats, cloud as dawn, civilized dawn riding all cities. और उनकी क्लास में बड़े बड़े महान लोगों की लिटरेचरिस्ट जिन्होंने लिटरेचर लिखा है, शेक्सपियर की तस्वीरें बनी हुई हैं, पेंटिंग्स बनी हुई हैं, सीढ़ियां लगी हुई हैं सूर्य निकलते हुए की, छुपते हुए की, और एक सभ्य शहर के अंदर जितनी अच्छी पेंटिंग्स, मकान, बिल्डिंग्स होती हैं, इस प्रकार की सीनरीज क्लास में लगी हुई हैं. बैलेट, ट्रॉली, वैले, इट मीन्स फूलों की सीनरी, कोई घाटी की सीनरी. One open-handed map avoided the world its word. और एक हाथ से बना हुआ मैप है, नक्शा है, जिससे मालूम पड़ता है कि हाँ दुनिया में क्या चीज कहाँ है. At least we come to know through the map that where the places exist on the earth. It is in the north or west, south or east, or it is in that country or another country. We come to know these things through the map. One map has been made in the class that is made simply by the hand, जिससे दुनिया का पता लगता है. Yet for these children, यद्यपि इन बच्चों के लिए, these windows, not this map, their words, where their own future painted with fog. Thing is that इन बच्चों के लिए इस मैप से कोई मायने नहीं रखता. इस मैप के जरिए इस दुनिया को नहीं जानते. ये जो विंडोज हैं, इनके जो बाहर देखते हैं दुनिया है, जो उनकी एक बस्ती है, बस दिस इज द ओनली देयर मैप. यही उनका मैप है, यही उनकी दुनिया है. एंड दे ओनली दिस वन. बस उन्हें इसी के बारे में जानकारी है. एटलीस्ट दे डोंट कम टू द वर्ल्ड अबाउट देयर मैप. They come to the world about their windows, whatever their states, their areas where they live in. उन्हें बस उसी दुनिया का पता है, वही तंगलियां, वही खिड़कियां और वही बस्ती, वही गंदी बस्ती. That's all. This is their world. जहां इनकी दुनिया शुरू होती है और एटलीस्ट भविष्य भी इनका इसी गंदी बस्ती में, इसी एरिया में समाप्त हो जाता है. जो कभी न खत्म होने वाली धुंध, कभी न खत्म होने वाली अज्ञानता का अंधेरा है, इसी में इनकी दुनिया समाप्त हो जाती है. नैरो स्ट्रीट सील्ड विद लीड स्काई फार फ्रॉम रिवर्स कैप्टन स्टार्स ऑफ वर्ड्स. में तंग गलियां, जो बहुत ही तंग गलियां हैं और नालियां हैं, और आसमान ऐसा लगता है जैसे कि पारे से भरा हुआ हो. इतनी सी आसमान दिखाई देता है. थोड़ा आसमान, खुले मैदान नहीं है, हरे झील, नदियां, तालाब, इनकी जानकारी इनको नहीं है. एटलीस्ट बस जिस बस्ती में ये हैं, ये उसी दुनिया की जानकारी रखते हैं. ये बहुत दूर हैं इन झीलों से, नदियों से, तालाब से, बीचेस से और खुले मैदान से. एटलीस्ट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द आउट ऑफ द वर्ल्ड. ये उस दुनिया के बारे में अनभिज्ञ हैं जो रियल में हम लोग जिसमें जीते हैं. दे हैव देयर ओन वर्ल्ड. उनकी अपनी एक लिमिटेड दुनिया है, लिमिटेड एरिया है वेयर दे लिव इन. Are you getting guys or not? Yes. Okay. Surely. In the first paragraph, the conditions, the malnutrition, the bodily looking, the appearance of the children has been described. In the second one, their class and the paintings, the paint walls, and also their thinking about their world has been described. In the fourth one, their poet has told that, poet ने बताया है कि surely, निश्चित रूप से, Shakespeare is wicked for them. Map is a bad example, with citizens love tempting them to steal for lives that slowly return in their cramped soul.
from fog to endless night. Oh, well, पोएट कहता है कि जो क्लास में पेंटिंग्स हैं, जो तस्वीरें हैं शेक्सपियर की, बड़े बड़े राइटर्स की, ये इनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। ये सीनरीज हैं एक्चुअली इस प्रकार है जैसे एक बच्चे की पहुंच से कोई चीज बहुत दूर होती है, वो फिर उसका सपना ही देखना छोड़ देता है और वापस अपने लिमिटेशंस में जीता है। उसी तरह ये राइटर्स नहीं बन सकते, इन बड़े बिल्डिंग्स के मालिक नहीं हो सकते, वापस उसी बिलो तक लौट आते हैं, मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए कि जस्ट दीज थिंग्स आर नॉट फॉर अस, ये चीजें हमारे लिए नहीं है। एटलीस्ट वी हैव टू सर्वाइव इन आवर कैटाबिल्स, हमें अपने कैटाबॉम्स इन बिलो में ही, इन छोटे मकानों में ही रहना है, बिकॉज दैट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ देयर रीच, वो उनकी पहुंच से बाहर है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट ट्राइंग टू अचीव इट, वो उसे प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, बस उसी अज्ञानता के अंधेरे में, उसी एक लिमिटेड एरिया में दे सर्वाइव एंड दे डाई इन दैट, अंत तक उसी में मर जाते हैं। On their slag heaps, these children wear skin-peeped through bones and spectacle of steel with bended glass, like a bottle beats on a stone. ये बच्चे उन्हीं आसपास के कूड़ों के ढेर पर जो घूमते हैं, जहां की बस्ती है, और इतने कमजोर हैं कि इनकी हड्डियां भी स्किन से होकर दिखाई देती है, बहुत लीन एंड थिन बॉडी दे हैव, हड्डियां भी झांक रही हैं स्किन से होते हुए। और चश्मे यदि पहना हुआ किसी बच्चे के पास चश्मा पहना हुआ तो वो भी वेल्डिंग किया हुआ। एटलीस्ट दीज थिंग्स आर शोइंग दैट दे आर कंप्लीटली पुअर, वेरी पुअर, because they don't have even to purchase the specs too, and that specs too also, जो इन्होंने चश्मा पहना हुआ है वो इस प्रकार लगता है जैसे पत्थर पर कांच के टुकड़े पड़े होते हैं, because in their body they don't have shining body, they don't have flash on their face, that's why it look like that they have lost entirely shining of their life and they are at all just like non-living things, it look like that, but of course they are alive, वे जीवित हैं, लेकिन उनके शरीर में चमक नहीं है। चश्मे भी ऐसे लगते हैं जैसे कि पत्थर के टुकड़ों पर रखे होते हैं। All the time and space are for Islam, from morning to night and night to morning. जितना भी उनका समय है, जो जीते हैं, घूमते हैं, पढ़ते हैं, वो बस उसी स्लम एरिया में बीतता है। This blot their map with slum as big as doom. So the blot their map with slum as big as doom. अतः इनकी जो दुनिया है, इनका जो नक्शा है, जिसे जानते हैं, बस ये इनके पैदा होने से शुरू होता है और जब तक दुनिया का इनकी अंत होता है, जीवन का अंत होता है, वही एरिया में लोग जीते हैं। Well, in a fourth one, poet has tried to describe that how the things could be changed. फोर्थ पैराग्राफ में पोएट ने कोशिश की डिस्क्राइब करने की चीजें कैसे बदल सकती हैं, how could be their improvement, वहाँ improvement कैसे हो सकता है, how could they come out from their life. Let's read now. Unless the governor, inspector, visitor, जब तक गवर्नर, गवर्नमेंट, अधिकारीगण, other persons who visit the conditions who are the responsible for the society, they don't wash, they don't come clearly to them, उन तक नहीं आते, and this map become their window, this window that shut upon their lives like catacomb. यदि जब तक इन्हें बाहरी दुनिया की जानकारी नहीं होती, ऑफ कोर्स ये विंडो के जरिए अपने नक्शे को जानते हैं, इसी दुनिया को जानते हैं, ये विंडोज इनका मैप न बनकर रियल मैप जब तक ये स्टडी नहीं करते और उसकी जानकारी इन्हें नहीं होती, ये असली दुनिया में बाहर नहीं आते, जब तक इनकी खिड़कियां बंद करके इन्हें असली दुनिया का आभास नहीं करा जाता। ओ ब्रेक ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, इनकी बंदिशों को तोड़ दो, इनको इस एरिया से बाहर निकालिए, जस्ट लेट देम गो आउट ऑफ दिस एरिया, ने बाहर घूमने की परमिशन दीजिए, हेल्प देम टू कम आउट फ्रॉम देयर, वहां से इनके आने में मदद कीजिए, इट मींस लेट देम टू गो फ्रॉम द ग्रीन फील्ड, ओपन फील्ड, make their world run azure on the gold sand, their tongue rack into the books, white and green leaves open history there, those languages the sun. Here, poet has tried to describe that
जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सम सोसाइटीज, दो आर द रेस्पॉन्सिबल पर्सन इन सोसाइटी, कुछ अच्छे लोग, बड़े लोग जो समाज के जिम्मेदार होते हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, और कुछ सरकार जब तक इन्हें सपोर्ट नहीं करती, इन्हें रियल ज्ञान का एहसास नहीं कराती, स्कूलों में नहीं भेजती, इन्हें सुविधाएं नहीं प्रदान करती, जब तक ये किताबें नहीं पढ़ेंगे, खुले मैदान में नहीं घूमेंगे, जिस प्रकार रेत होती है उसमें कहीं कुछ शाइनिंग सिल्क की कण होते हैं जो चमकते हैं, खुले मैदान में खूब अपनी रोशनी बिखेरते हैं, जब तक इन्हें खुले मैदान का, हरे भरे खेतों की जानकारी नहीं होती, ये उस दुनिया का एहसास नहीं करेंगे, तब तक, और ये स्टडी नहीं करते, तब तक इनके हालात नहीं बदल सकते, क्योंकि दुनिया उसी की होती है। इस दुनिया में वही जीता है, वही कुछ क्रिएट कर सकता है, वही कुछ सोच सकता है जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान होता है। एटलीस्ट वर्ड हैज ट्राइड टू कन्विंस दैट गवर्नमेंट शुड सपोर्ट देम, should provide them all the facilities, and should let them read throughout the school, throughout the books, and let them go in the open field, green field, and let them know the towns, caps, rivers, each and everything, so that they could start to think in different way, ताकि वो जीवन को अलग ढंग से जीने के लिए सोचने पर मजबूर हो जाए। These were the things, प्यारे बच्चों, the poet Stephen Spender has tried to tell us the slum children, their conditions, their lives, and their compulsions also. If they are continuing compelled to live in that area, it is because of there is not great help to them, and also we are not responsible for the society. That's why they are living there. Some part the government is not playing, they are not performing their duty, and also the persons those are responsible in society, they are not performing their duties. That's why they are compelled to live in that area. उन्हें मजबूर हो जाते हैं उस स्थिति में रहने के लिए जब उन्हें कोई संसाधन, कोई सुविधा नहीं मिल पाती, अदरवाइज वो भी उस बस्ती में रहना नहीं चाहते। So if really you are the human, think for the human and pay the duty for the human and help the human, because human is that who help the humanity, who has humanity in his heart, he is the human. And there are four paragraphs in that. One more thing, guys, there are some literary devices. As we write this story, we write novel, there are some rule regulations, plotting, narrations, initiations, winding up, conclusion. Think also, poems are written with the help of literary device. I hope in the next video I'll explain you each and everything, just how to take out the rim कैसे जज करते हैं, and इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, किस इमेजरी का प्रयोग किया गया है, किन डिवाइसों का प्रयोग किया गया है पोएम को लिखने के लिए, so that you could judge and you could find out easily on your own. As something has been repeated here, जैसे मैं आपको हल्का सा बताऊं, far far dusty waves, these children faces. अब देखिए यहाँ, अब यदि बार बार कुछ वर्ड रिपीट होते हैं, then literary device repetition has been used over there. One more thing, guys. Phrases, parlor, paper, hero, and disease and classes. Okay, I will show you with the help of examples to each and everything at once on one to manner. One, just you must know the story once again of the poem. इसमें poet ने describe किया है फर्स्ट पैराग्राफ में कि ये बच्चे, कमजोर बच्चे जो स्लम बस्ती में रहते हैं, अपनी क्लास में हैं, बहुत ही लीन एंड थिन हैं, इनकी आंखों में भूख है और इनके चेहरे पर बाल पड़े हुए हैं, मींस वेल नॉट कॉम्ड हैं, और वो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। सेकंड में उसे क्लास में डिस्क्राइब किया गया है। इन थर्ड पैराग्राफ इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड दैट व्हाई दे आर कंपेल्ड टू लिव देयर, एंड इन फोर्थ वन ही हैज गिवन द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. I want that you must go through and once again find out the bookwork of this poem. Okay guys, thank you.